لیکن دانی تم جانتی ہو نا یہ سب کتنا حساس ہے. میں تمہیں اعتماد میں لینا چاہتا تھا اور یقین کرو جس دن میں نے تم سے ہمارے مستقبل کی متعلق بات کی اس دن میں نے تمہیں سب بتانے کا سوچ لیا تھا اور چاہتا بھی تھا. لیکن تمہاری بے اتنائی دیکھ کر مجھے مناسب نہیں لگا. آہل چہرہ جھکائے بول رہا تھا. دانی انہماک سے اسے سن رہی تھی. آئی نو میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ جب میں تم پر بھروسہ کرنے لگتی تم میرا اعتماد توڑ دیتے. پھر میں نے تم پر یقین کرنا ترک کر دیا. غلطی نہ تمہاری تھی نہ میری. شاید وقت کی تھی. شاید وقت غلط تھا. لیکن دانی آہل حیات تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے. آہل کی آنکھوں میں ڈھیروں جذبے سمٹ آئے. دانی مسرت سے اسے دیکھنے لگی. آج میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے ہجر میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ آہل دانی کے بنا ادھورا ہے. آہل کو مکمل کرنے کے لیے دانی کا ہونا لازمی ہے. تمہیں میں نے اپنی سانسوں میں پرویا ہے. اب کیسے تمہارے بنا جیا جائے؟ 5 مہینے تمہیں دیکھنے کا، تمہیں سننے کا، تمہاری خوشبو کا عادی ہو گیا ہوں میں. تم مجھے واپس مل گئی ہو. اب میں دوبارہ تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا. آہل نے ہتھیار ڈال دیے. لیکن تم تو کہہ رہے تھے طلاق. ہاں سوچا تھا اور کہہ بھی دیا تھا. لیکن آہل چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا. کہنا بھی مشکل تھا اور کرنا ناممکن. دانی اس کے اظہار پر کھل اٹھی. ابھی بھی کوئی ناراضگی تو بتا دو. آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا. تم مجھ پر غصہ نہیں کرو گے؟ دانی خفگی سے بولی. اوکے میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن تم بھی میری بات مانو گی. جب میں کچھ کہوں تو مان لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے. دانی ٹھیک کو لمبا کرتی ہوئی بولی. آہل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی. تم دوبارہ انا کے پاس مجھے دکھائی نہ دو تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں. سمجھے؟ دانی اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی بولی. آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. میں تھک گئی ہوں. دانی منہ بناتی ہوئی بولی. آؤ بیٹھتے ہیں پھر. آہل اس کا ہاتھ تھامتے جھیل کے دوسری جانب آ گیا. دونوں درخت کی اوٹ میں بیٹھ کے اب آگے کا ڈیسائیڈ کر لیں. آہل دور خلا میں دیکھتا ہوا بولا. ہاں لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ تمہاری موم مجھے کیسے جانتی تھی اور میرے ڈیڈ کو بھی؟ دانی کو اپنے سوال یاد آ گئے. آہل کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ تھی. تم جان چکی ہوگی کہ موم نے تمہارا انتخاب کیا تھا میرے لیے. زبیر میرے ڈیڈ کا بہت پرانا دوست تھا. ڈیڈ اسے بہت سپورٹ کرتے. اس کے بنا کہے مدد کر دیتے. لیکن اس نے ڈیڈ کو ختم کر دیا. صرف ڈیڈ کو ہی نہیں میری موم کو بھی. آہل کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر شرٹ میں جذب ہو گئے. دانی ہاتھ کی پشت سے آنکھیں مسلتی ہوئی رنج سے آہل کو دیکھنے لگی. تم جانتی ہو میری موم بہت اچھی تھی. خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ مرتے تھے ان پر. آہل کی آنکھیں چمکنے لگی. پہلی بار وہ اپنے دل کی بات کسی انسان سے شیئر کر رہا تھا. وہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی خوبصورت تھی. موم تمہیں بہت پسند کرتی تھی. تمہارے سامنے میری بات بھی نہیں مانتی تھی. آہل آنسو بہاتا نرمی سے مسکرا دیا. دانی دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتی اس کی آواز میں کھو گئی تھی. انہیں تمہاری آنکھیں بہت پسند تھی. آہل ماضی کو یاد کرتا ہوا بول رہا تھا. اور تمہیں؟ بے ساختہ دانی کے لبوں سے پھسلا. اور مجھے پوری کی پوری. آہل مسکرایا تو ڈمپل نمایاں ہوا. دانی نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا. تمہارا نام بھی موم نے رکھا تھا دانی. پھر تم نے اپنی موم کی بات مان لی؟ دانی اشتیاق سے بولی. مان لی تھی تبھی تو آج تم میرے ہمراہ ہو. تم لڑکے ہو کر کیسے مان گئے؟ ہاں پہلے تم مجھے پسند نہیں تھی بالکل بھی. آہل صاحب گوئی سے بولا. دانی خفگی سے اسے دیکھنے لگی. تب میں 18 سال کا تھا جب ڈیڈ مجھے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بھیج رہے تھے. موم نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں کسی لڑکی کو پسند نہ کروں کیونکہ وہ تمہیں پسند کر چکی تھی. مجھے تم بالکل پسند نہیں تھی. بدتمیز سی گرے آنکھوں والی. آہل مسکراتا ہوا بولا. پھر کیسے پسند آ گئی؟ دانی تجسس سے بولی. اپنی موم کی خواہش کا احترام کیا. پھر کچھ سالوں بعد تمہیں فالو کرنے لگا. تمہاری پسند ناپسند، تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے ملتی ہو، ہر چیز معلوم کرنے لگا. بس اسی معلومات کے دوران تم اچھی لگنے لگی. موم کے باعث دماغ تمہیں قبول کر چکا تھا. پھر دل بھی ہاتھ دھونے لگا. کس صابن سے؟ دانی نہایت سنجیدگی سے بولی. آہل پہلے نہ سمجھی سے پھر سمجھنے پر کہکا لگاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. تمہاری آنکھوں کے باعث. آہل کی ناک دباتا ہوا بولا. مطلب تم نے یہ ٹیٹو سچ میں میرے لیے بنوایا ہے؟ دانی بے یقینی کی کیفیت میں بولی. نہیں مذاق میں بنوایا تھا. آہل گھور کر بولا. سمپل سی بات ہے تمہارے لیے بنوایا ہے. دانی مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی. اور کچھ جاننا چاہتی ہو؟ آہل فرصت سے اسے دیکھتا ہوا بولا. نہیں مجھے لگتا ہے تم نے سب کلیئر کر دیا ہے. دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی. اب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آہل اس کا جواب سننے کا منتظر تھا. مجھے کیا کہنا ہے؟ دانی جان بوجھ کر انجان بنی. آہل مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا. چلو کوئی نہیں کسی دن تمہاری بھی باری آئے گی. دانی اسے دیکھتی ہوئی کھل کر مسکرا دی. آہل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا. دل کا غم سنایا تو بوجھ اتر گیا. اس کی نظریں جھیل پر تھی جب دانی نے اسے پکارا. آہل چہرہ اس کی جانب موڑتا ہوا بولا. 10 سال پہلے جو بھی ہوا مجھے بہت دکھ ہوا جان کر. آہل کے چہرے پر کرب دکھائی دینے لگا. مجھے افسوس ہے میں تمہیں سمجھ نہیں سکی لیکن میں نے تمہاری مسٹری حل کر لی ہے. سو اب دانی صرف تمہاری ہے. میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی. دانی اس کے ہاتھ اپنے نرم و ملائم
मोमल की मानिंद हाथों में लेती हुई बोली, तुम्हारे मॉम डैड का बदला मैं भी लूंगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे मेरे डैड को सजा क्यों ना मिले। आहिल दानी की आंखों में अपने लिए मान देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। दानी, ये सब बहुत मुश्किल है। आहिल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर बदला लूंगी। हम दोनों होंगे, तुम अकेले नहीं हो। दानी उसके हाथ को दबाती हुई बोली। आहिल की आंखों में आंसू तैरने लगे। 10 साल बाद मानो कोई अपना मिला है। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। तुम नहीं जानती दानी, मैं किस कर्ब से गुजरा हूँ। मैं इतना सख्त क्यों हूँ, इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। तुम कभी जानने की कोशिश नहीं कर रही। जिस इंसान की जिंदगी में इतनी तलखियां हो, कुछ बाकी ना हो, वो ऐसे ही है, बेहिस हो जाता है। तुम जानती हो, इस वाकये के बाद मैं सिर्फ 2 दफा मॉम डैड की कब्र पर गया था। सिर्फ 2 दफा। इसके बाद नहीं। मेरे मॉम डैड मेरे दोस्त के माने थे। हम एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमारी खुशियों को आग लग गई। पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन डैड के इसरार पर मान गया। तुम सोचो, जो इतना वक्त अपने मॉम डैड से दूर रहे और आने पर वो इस हाल में मिले, क्या वो इंसान जिंदा हो सकता है। आहिल नफी में सर हिला रहा था। मैं खत्म हो गया था इस दिन। मेरा दिल मर चुका था। इसके बाद आहिल हयात सिर्फ एक रोबोट की मानिंद था, जिसका मकसद सिर्फ बदला था। इसी आग में जलता, इसी में मरता और इसी में जीता। दिल ऐसे था जैसे फट चुका हो, इतनी तकलीफ थी। हम तीनों एक दूसरे के लिए पागल थे। ऐसी बॉन्डिंग थी, किसी पेरेंट्स की और बच्चों में नहीं होगी, जैसी हमारी थी। यहाँ तक कि मॉम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती थी डैड को जेलस करने के लिए, और वो मुझसे भी झगड़ते थे। ऐसी थी हमारी फैमिली। आहिल धीरे से मुस्कुराया। वो दिन बेस्ट थे, जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकते। मरने को तो यही बात काफी है कि वो कभी नहीं लौटेंगे। बात करना तो दूर, देख भी नहीं सकता उन्हें। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। वो अपने साथ साथ दानी को भी रुला रहा था। तुम्हें कुछ बताता हूँ, आहिल पुरजोश सा बोला। दानी को ये आहिल बिल्कुल मुख्तलिफ लगा था, जिससे वो अनजान थी। एक बार मॉम डैड की लड़ाई हो गई। हम दोनों शिकार पर चले गए, और जब डैड को मालूम हुआ तो वो तैश में आ गए। तुम्हें मालूम है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जंगल में आ गए। इसके बाद मेरी खूब की। मॉम हमेशा मेरा दिफा करती। फिर वो हमें घर लेकर आए और मुझे वार्निंग दी कि अगर दोबारा मैं मॉम को इस तरह लेकर गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। आहिल कहका लगाता झील को देख रहा था। बहुत मजे के थे वो दिन। फिर तुमने अपने डैड से कुछ नहीं कहा। कहा था, आहिल याद करता हुआ बोला। मैंने कहा, डैड, मैं कौन सा आपकी बीवी को भगा कर ले गया था जो आप ऐसे बोल रहे। डैड बोले, दूर रहा करो मेरी बीवी से। दानी उसे पहली बार इस तरह हंसता हुआ देख रही थी। फिर मॉम डैड को डांटने लगी, और डैड मुझे घूरते हुए खामोश हो गए। आहिल के हाथ अभी तक दानी के हाथों में थे। माजी हमेशा तकलीफदेह नहीं होता, बहुत सी खूबसूरत यादें भी होती हैं। बस हम हमेशा गम को हावी कर लेते हैं, अच्छा वक्त भूल जाते हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन ये यादें भी तकलीफ देती हैं। जब हकीकत से सामना करें कि वो कभी वापस नहीं आ सकते, फिर क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ याद नहीं रहता। आहिल, जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। तुम्हें इस गम को काबू करना होगा। खुद पर हावी मत होने दिया करो। सामना करो इसका। आहिल, तुम बहुत मजबूत हो। आहिल इस बात में सर हिलाता दानी के हाथों से अपना हाथ निकालता चेहरा साफ करने लगा। तुम्हें देखता हूं तो जिंदगी का एहसास होता है। तुम्हारे आने से आहिल हयात ने मुस्कुराना सीखा। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को जला बख्शी। आज मैं मुस्कुराता हूं तो दिल से। आहिल बगौर दानी को देखता हुआ बोला। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराओगे मेरे जाहिल हयात। दानी शरारत से बोली। बिल्कुल मेरी जंगली बिल्ली। आहिल उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता हुआ बोला और अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टिका दी। दानी आंखें बंद करती मुस्कुराने लगी। कितने पल, कितने लम्हे, कितनी सातें बीत गईं, दोनों ने हिसाब नहीं रखा। हवा उनके चेहरे पर बोसे दे रही थी। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। तारीकी में ये दोनों नफ्स अपने एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। खामोशी इनके बीच गुफ्तगू कर रही थी। चांद उन्हें देखकर बादलों में शर्मा गया। फोन की रिंगटोन ने खामोशी में इर्ताज पैदा किया। सकूत टूटा तो आहिल पीछे होता हुआ जेब से फोन निकालने लगा। हाँ बोलो रफीक। दानी पोनी उतारकर बाल सेट करने लगी। हाँ, तुम करवा दो वो काम। इसके बाद तुम पाकिस्तान चले जाना। मैं दानी को लेकर बाद में आ जाऊंगा। फिलहाल मैं वापस जाना नहीं चाहता। कुछ वक्त सुकून से रहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मुझे कॉल कर देना तुम। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। हम वापस कब जाएंगे। दानी उसे फोन वापस रखते देखकर बोली। अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन छुट्टियां मनाएंगे। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। तुम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लोगे। दानी शर्मिंदा सी बोली। नहीं, अब वक्त नहीं रहा। वैसे भी जंगली बिल्ली को सियासत नहीं पसंद, इसलिए। आहिल नाक चढ़ाता हुआ बोला। तुम मेरी नकल कर रहे हो। दानी घूरती हुई उसे नवाजती बोली। बिल्कुल भी नहीं। आहिल मासूमियत से बोला। उफ मेरे मासूम हयात। दानी उसे नए नाम से नवाजती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाते हुए बोलने लगा। घर चले। आहिल खड़ा होकर दानी के सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। दानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई खड़ी हो गई। आहिल, मुझे नहीं मालूम था तुम इतना बोल सकते हो। दानी मसरूर सी बोली। क्यों, मेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या। आहिल बुरा मान गया। नहीं, जुबान तो है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कैंची की तरह भी चलती है। आहिल कहका लगाता सामने देखने लगा। गरीब हयात, कुछ ले दोगे मुझे, भूख लगी है, आओ ड्रिंक करें। आहिल शरारत से बोला। शर्म करो, खुद तो करोगे, साथ में मुझे भी मिला रहे हो।
वैसे कैसा टेस्ट होता है? एक बार पीने में कोई कबाहत तो नहीं? दानी राजदारी से बोली। मजाक कर रहा हूँ मैं, ज्यादा खुश मत हो। आहिल घूरता हुआ बोला। मुझे ऐसे ही खुशफहमी में मुब्तला कर दिया, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। आहिल, तुम्हारे चाचू के लैपटॉप में क्या था? दानी की टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहने वॉशरूम से निकलती हुई बोली। मैं खुद भी नहीं जानता, जब पाकिस्तान वापस किया तो उसी दिन चाचू गायब हो गए। इसके बाद तुम जानती हो कब मिले? आहिल उदासी से बोला। ओह, और तुम इलेक्शन कौन जीता था? तुम्हारी पार्टी जीती थी, लेकिन जुबैर ने सबको ये कह दिया कि डैड ने उसके साथ इल्हाक कर लिया था, और सबने यकीन भी कर लिया क्योंकि रिफाइनरी भी उसके नाम थी। इसीलिए हुकूमत उसने बनाई, चाचू को धमकाकर खामोश करवा दिया, तभी तो रिफाइनरी चला सका वो। आहिल हंकार भरता हुआ बोला। ओह, और इसके बाद फिर मैंने पार्टी अलग कर ली और 5 साल तक हुकूमत की। मजा आया? दानी बात को मजाक का रंग देती हुई बोली। किस बात का? आहिल अबरूज काकर बोला। हुकूमत करने का। पागल हो तुम? आहिल हंसता हुआ बोला। फिर अब क्या करोगे तुम? कैसे डैड से बदला लोगे? दानी उसके बाएं जानिब बैठती हुई बोली। फिलहाल हम छुट्टियों पर हैं, पाकिस्तान जाकर सोचेंगे। आहिल उसकी पेशानी पर मुंतशिर बाल हटाता हुआ बोला। बता तो सकते हो ना? दानी मुंह बनाकर बोली। जी नहीं, आहिल उसके अंदाज में बोला। मत बताओ। दानी नाक से कोटती गेम खेलने लगी। यार इसको बंद करो, पहले खाना खा लो। नहीं, पहले इसे खत्म करूंगी फिर खाना। दानी मोबाइल साइड पर करती हुई बोली। मेरे वापस आने तक गेम खत्म हो। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी उसकी बात पर कान धरे बिना खेलती रही। दानी, तुम अभी तक खेल रही हो? आहिल वापस आकर खफगी से बोला। खत्म ही नहीं हुई, दानी शाने चुकाती हुई बोली। खाना ठंडा हो जाएगा, आहिल गुस्से से बोला। फिर क्या मुंह में जाने से इनकार कर देगा? दानी कहाँ खामोश रहने वाली थी। आहिल मुस्कुराता हुआ ट्रे रखकर बैठ गया। मुंह खोलो, नवाला दानी के सामने करता हुआ बोला। सो स्वीट, दानी मुस्कुराकर कहती मुंह खोलने लगी। आहिल अपने साथ साथ दानी को भी खिलाने लगा। दानी को खुद पर रश्क आने लगा था। गेम खत्म हुई तो दानी ने आहिल को बताए बिना फिर से नई गेम स्टार्ट कर ली। दानी की आंखों में शरारत थी। मुंह खोलो, आहिल हाथ आगे करता हुआ बोला। दानी मुंह खोले हुए थी और आहिल हाथ पीछे खींचता जा रहा था। दानी आगे होती जा रही थी, नजरें मोबाइल पर थी। दानी की पेशानी पर आहिल के रुखसार से टकराई तो निगाह उठाकर आहिल को देखने लगी, जो चेहरे पर खफकी सजाई घूर रहा था। दानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और मोबाइल साइड पर रख दिया। अब खिलाओ, अब खुद खाओ। आहिल टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया। दानी मुंह खोले से देखने लगी। खिला देते तो कौन सा गुनाह हो जाता? दानी बोलती हुई खाने लगी। जंगली बिल्ली, मुझे और भी बहुत से काम है। आहिल कहता हुआ मुड़ गया। हाँ, पूरी दुनिया का ठेका तुमने उठा रखा है ना? दानी खफगी से बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ लैपटॉप खोल कर बैठ गया। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। खिड़की के आगे पर्दा थोड़ा सा सरका हुआ था, जिसके बायस चांद की हल्की हल्की रोशनी छिनकर अंदर आ रही थी। तारीकी के हमरा मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की घड़ी की टिक टिक वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अनम रहीम का चेहरा थामे बैठी थी, खून आलूद चेहरा। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रहीम की आंखों में नमी तैर रही थी। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अनम आंसू बहाती उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन रहीम की आंखें बंद हो चुकी थी। रहीम, आंखें खोलो। रहीम, रहीम, अनम चिल्लाकर उठ बैठी। तनफ्फुस तेज हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेती गिरदोपेश पे निगाह दौड़ाने लगी। अनम ने साइड टेबल पर हाथ मारा और लैंप ऑन किया। आंसू निकलकर रुखसार पर आ रहे थे। अनम ने गिलास उठाया और एक ही सांस में खत्म कर लिया। कंबल परे फेंकती बेड से उतर गई और नीचे चलती हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। बाहर तारीकी का राज था। अनम को ये रात उदास लग रही थी। सितारे आसमान की चादर पर दिखाई नहीं दे रहे थे, अलबत्ता महताब पूरी आबोताब से दमक रहा था। अनम आंसू बहाती आसमान को देखने लगी। मेरा चांद तो चला गया, अब मैं क्या करूं? वो मंजर ऐसे मालूम होता है, हर लम्हा मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मेरे सामने वो वाकया वकूअ पजीर हुआ, लेकिन दिल अभी भी मानने से इनकारी है। कैसे समझाऊं उसे? अनम थके थके अंदाज में खिड़की में बैठ गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम भी कभी जुदा ना होते। रहीम, तुम तो चले गए, मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। इससे बेहतर तो ये होता, तुम्हारी जगह मौत मुझे ले जाती। तुम्हारी जरूरत बहुत से लोगों को है, लेकिन मेरी। अनम ने बात अधूरी छोड़कर सर झुका लिया। सांस खारिज करती वो कमरे को देखने लगी। कुछ चीजें या ख्वाहिशात होती हैं जो हमें नहीं मिलती, लेकिन काफी वक्त बाद उनसे ममासलत रखने वाली कोई चीज मिल जाती है। लेकिन इंसानों का कोई नेमल बदल नहीं होता। वो एक बार चले जाए तो फिर कभी नहीं मिलते। और जब हम एक इंसान की खूबियां किसी दूसरे इंसान में ढूंढना शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो कोई भी हो और कोई हो नहीं सकता। क्यों चले गए तुम? देखो, मुझे तन्हा छोड़ दिया है। एक तुम ही तो थे मेरी तन्हाई के साथी, और अब देखो पहले से ज्यादा तन्हा हो गई हूँ। पहले आदत थी, लेकिन तुमने आदत खराब कर दी। अब मैं क्या करूं? रहीम, बताओ मुझे। अनम ने रोते हुए चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आहिल कहाँ गायब है? दानी रफीक को देखती हुई बोली। मैम, वो किसी जरूरी काम से गए हैं। कौन सा जरूरी काम? यहाँ आन पड़ा। दानी बुड़बुड़ाती हुई चलने लगी। दानी फोन पर नंबर मिलाने लगी। पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया गया। कहाँ हो तुम? क्यों मिस कर रही हो? आहिल लब दबाए हुए मुस्कुराने लगा। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ भी तुम्हें हुकूमत चला रहे हो क्या? नहीं, अब तो निगरान हुकूमत है हमारी खत्म।
फिर कौन से काम खत्म नहीं होते तुम्हारे? दानी तनक कर बोली। बिल्कुल बीवियों वाली टून हो गई है तुम्हारी, आहिल महजूज होता हुआ बोला। जो पूछा है उसका जवाब दो, है ना? वो तो मत देना तुम, अपनी फारसी झाड़ते रहना। अब हर काम तो तुम्हें बताया नहीं जा सकता ना। हाँ, अपनी हाफ गर्लफ्रेंड को सब बता सकते हो, मुझे नहीं। अच्छा, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, आहिल ने कहकर फोन काट दिया और फिर से खिलौने देखने लगा। आहिल रात में वापस आया, दानी उसकी मुंतजिर थी। जैसे ही नजर आहिल पर पड़ी, पेशानी पर बल पड़ गए। जंगली बिल्ली मेरा इंतजार कर रही थी, आहिल बोलता हुआ दानी के साथ आ बैठा। नहीं, गली के वो जो आवारा लड़के हैं ना, उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हें किसने गलत खबर दे दी? छोड़ो ये सब और मेरी बात सुनो। आहिल उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला। क्या? दानी अबरूज खाकर बोली। तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आहिल, मैं आज पैदल नहीं चलने वाली, तुम्हारा इरादा तो मुझे लंगड़ा करने का है शायद, दानी गुज़िश्ता दिन याद करती हुई बोली। नहीं, आज हम गाड़ी पर जाएंगे, आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। अच्छा फिर ठीक है, दानी सर हिलाती हुई खड़ी हो गई। जल्दी करना। अब तुम्हारे पीछे कौन लगा है जो जल्दी डाल रहे हो? सुबह से आवारागर्दी करते हुए मालूम नहीं था क्या? दानी खफगी से देखती हुई मुड़ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मोबाइल पर टाइपिंग करने लगा। आहिल खड़ा हुआ और चेंज करने दूसरे कमरे में चला गया। वापस आया तो दानी को शीशे के सामने पाया। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके अकब में आ खड़ा हुआ। कहाँ जाना है हमने? दानी आईने में उसका अक्स देखती हुई बोली। डेट पर, आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। ओ अच्छा, वैसे तुम्हारे जैसे ज़ईफ लोग भी डेट पर जाते हैं क्या? दानी शरारत से बोली। क्यों, हम ज़ईफ लोगों के सीने में दिल नहीं होता क्या? तुम्हारा दिल भी तो बुढ़ा हो गया होगा ना। अगर तुम 2 मिनट में ना आई ना तो मैं अना को ले जाऊंगा अपने साथ, आहिल धमकाता हुआ साइड पर हो गया। हाँ, अना तुम्हारी मासी लगती है ना, उसे साथ ले जाओगे तुम, दानी जल भुनकर बोली। दानी स्लीवलेस रॉयल ब्लू कलर की स्कर्ट पहने हुए थी, स्याह लंबे बाल कमर पर गिरा रखे थे, ग्रे आंखों पर हल्की पलकों की घनी चादर बिछी हुई थी। अब दानी डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाने में मगन थी, उसके सुर्खों सफेद रंग पर ये रंग चार चांद लगा रहा था। आहिल खुद भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए था, स्याह बालों को जल लगाकर खड़ा कर रखा था। सफेद रंग पर बड़ी हुई शेव क्या दिलकश मंजर पेश कर रही थी, इस पर इसका जालिम डिंपल। वो लम्हा बर्बाद भी दानी पर नजर डालता, फिर वो वापस मोबाइल पर नजरें जमा लेता। दानी, मैं अना के साथ जा रहा हूँ, आहिल फोन जेब में डालता हुआ खड़ा हो गया। दानी रूहांसी होकर आहिल को देखने लगी। तुम ना, दानी दांत पीसती हुई उसके सामने आ गई। अब चलो जल्दी से। आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बाहर निकल आया। बातिल हयात कहीं का, दानी बुड़बुड़ाती हुई आहिल की तकलीद करने लगी। दानी बाहर आई तो आहिल गाड़ी में बैठा था। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ, दानी उसकी जानिब आती हुई बोली। ऑफ कोर्स, कोई शक, आहिल अबरूज खाकर बोला। जब डेट पर ले जाते हैं तो दरवाजा लड़का खोलता है, लेकिन तुम तो अपनी सीट पर मल मारकर ऐसे बैठे हो जैसे बाद में मिलनी ही नहीं थी, दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। आहिल सल्ख हो जाता हुआ दानी को देखने लगा। वो क्या है ना दानी, मुझे आदत नहीं, इनफैक्ट मुझे तो अपने गार्ड्स की याद आ रही है, वही डोर ओपन करते थे, आहिल मासूमियत से बोला। आए बड़े तुम चीफ मिनिस्टर, दानी बुड़बुड़ाती हुई बैठ गई। सीट बेल्ट, आहिल इशारा करता हुआ बोला। चुप करके गाड़ी चलाओ, ऐसा ना हो कि सीट बेल्ट से तुम्हारा मुंह बांध दूं मैं, दानी काट खाने वाली नजरों से देखती हुई बोली। आहिल लत दबाता हुआ मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओ शिट, 1 मिनट, आहिल गाड़ी रोककर दानी को देखने लगा। व्हाट? दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। आहिल ने जेब में से एक स्याह पट्टी निकाली। मुझे अगवा करके तावान मांगने का इरादा है क्या? दानी टिका लगाती हुई बोली। सिर्फ अगवा करने का इरादा है, आहिल ने कहते हुए दानी की आंखों पर पट्टी रखी और हाथ पीछे ले जाकर बांध दी। बस अंधा करने की कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर दी तुमने, दानी बोलती हुई सीधी हो गई। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। मतलूबा जगह पर पहुंचकर आहिल बाहर निकला, दानी की जानिब आकर दरवाजा खोला और हाथ पकड़ लिया। आ जाओ बाहर। आ जाओ? हाँ, दानी उसका लम्स महसूस करती हुई बोली। हाँ आ जाओ, दानी छोटे छोटे कदम उठाती आहिल के हमरा चलने लगी। आहिल का हाथ पकड़े दानी का दिल अजीब की कैफियत में गिरफ्तार था। आहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? दानी से ज्यादा देर खामोश ना रहा गया तो बोल पड़ी। डेट पर, आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी नफी में सर हिलाती मुस्कुराने लगी। लकड़ी से बनी सीढ़ियों पर खड़े होकर आहिल ने दानी का हाथ छोड़ा और उसके अकब में आया और पट्टी खोल दी। तारीकी से रोशनी में आकर दानी की आंखें चुंधिया गई। आंखें छोटी किए वो पहले आहिल को फिर सामने समंदर को देखने लगी। आहिल उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगा। दानी खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। लकड़ी के जीने उतरकर वो दोनों रेत पर आ गए। सुनहरी रेत जो सोने की मानिंद दिखाई दे रही थी। आहिल बैठकर शूज उतारने लगा। दानी ने भी अपने नीले सैंडल उतार दिए। लहरें शोर मचा रही थी, तेज हवा के झोंके आकर उनसे टकरा रहे थे। ताहद्दे नजर नीलगों शफाफ पानी दिखाई दे रहा था। दानी आहिल को बहलाकर पानी की जानिब बढ़ने लगी। ठंडा यख बसता पानी। दानी झुरझुरी लेती पीछे को हुई, लेकिन अगले ही लम्हे एक बड़ी लहर आई और दानी को घुटनों तक भिगो गई। आहिल पैंट फोल्ड करता दानी को देखने लगा, फिर खड़ा हुआ और दानी के पहलू में आ गया। पानी को देखकर मुझे भूल गई, आहिल शिकवा कुना नजरों से देखता हुआ बोला। इस सिमत इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। तुम जानते हो दानी दीवानी है पानी की।
दानी पानी में हाथ डालती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। दानी बहुत ठंडा है ये, बीमार पड़ जाओगी ऐसे, आ जाओ। आहिल उसे कहता हुआ पीछे हो गया, लेकिन दानी पानी देखकर पागल हो गई थी। लहरें आती और उसे भिगा देती। समंदर इसके साथ खेल रहा था। खामोशी में लहरों की आवाज इरताश पैदा कर रही थी। फलक पर महताब जगमगा रहा था। दानी ठंड लग जाएगी, आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। आहिल अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आहिल घूर कर बोला। ये क्या बात हुई? तुम हाथ लगाने आए थे क्या समंदर को? दानी नाराज नाराज सी गीली रेत पर चलने लगी। नहीं, हम और किसी काम के लिए आए हैं। मछलियां पकड़ने का काम करने आए हो क्या? नहीं, बहुत खास काम है। तुम बेवकूफ ही रहना, आहिल उसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। लहरें आती और इनके पांव को बोसा देकर पांव के नीचे से रेत खींच कर ले जाती। रात के टाइम समंदर खौफनाक होता है। देखो कितनी लहरें बड़ी हैं, आहिल नरमी से समझाने लगे। कुछ मुसाफत तय करने के बाद दानी को मध्यम मध्यम सी रोशनियां दिखाई देने लगी। रेत पर छोटी छोटी लाइट्स पड़ी थी, जिनसे दानी लिखा हुआ था। कुछ फासले पर 4 पिलर खड़े थे, जिन पर सफेद कपड़े बांधकर गुलदस्ते रखे गए थे। पिलर्स के वस्त में सफेद रंग की सतह पर 2 तकिए रखे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां पड़ी थी। सामने समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। दानी बहुत ज्यादा इस मंजर को देख रही थी। आहिल, दानी उसके मुकाबले आती हुई बोली। पसंद आया? आहिल जानता था, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था। दानी की आंखें नम हो गईं। दोनों के बीच फासले खत्म हो चुके थे। आहिल नफी में सर हिलाने लगा। तुमने ये सब मेरे लिए किया है? दानी सताइश से देखती हुई बोली। पागल हो क्या? ये सब तो मैंने आना के लिए किया है। उसे पसंद आएगा ना? आहिल फासलों को समेटता 2 कदम दानी की जानिब बढ़ा। दानी पहले खफगी से, फिर मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। मेरे जाहिल हयात, तुम्हारी बीवी बेवकूफ नहीं है, दानी उसका गिरबान पकड़ती हुई बोली। अच्छा जी, मुझे लगा अहमक हो तुम। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टकराता हुआ बोला। जालिम हयात, दानी पेशानी मसलती हुई बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दाएं बाएं देखती दानी बोली, जहां उसका नाम लिखा था। मिसेज आहिल, यकीन कर लें, आहिल खुमार आलू लहजे में बोला। दानी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी, जहां ढेरों जज्बे सिमट आए थे। तेज हवा दानी के बालों के साथ अटकेलियां कर रही थी। दानी अपनी उंगली की पोरों से आंखों पर आते बाल हटाने लगी। तुम्हारी बर्थडे, आहिल कहकर खामोश हो गया। ओ, मेरा बर्थडे? मैं तो भूल गई, दानी पेशानी पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल नर्म मुस्कुराहट लिए दानी को देखकर जेब से एक डिब्बे निकालने लगा। दानी अबरूज खाकर आहिल को देखने लगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए सोचा था, लेकिन मैंने किस्मत को शायद ऐसे ही मंजूर था। आहिल नीले डायमंड वाली अंगूठी निकालता हुआ बोला। दानी शशतर सी रह गई। हाथ आगे करो, आहिल हथेली उसके सामने फैलाता हुआ बोला। ऐसे नहीं, दानी हाथ पीछे करती हुई बोली। फिर आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। घुटनों पर बैठकर पहले मुझे आई लव यू बोलो, फिर पहनाओ। दानी निचला लब दबाकर धीरे से मुस्कुराने लगी। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। आर यू सीरियस? आहिल हैरत से बोला। ऑफ कोर्स आई एम। दानी सीने पर बाजू बांधती हुई बोली। अच्छा मजाक है दानी। आहिल उसकी बात में हवा में उड़ा दी। तो ये मजाक नहीं, दानी पूरी आंखें खोलती हुई बोली। मैंने ये सब नहीं करना दानी, आहिल अशाने उचकाता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए कौन सा कोर्स की दरकार है तुम्हें, जो तुमने किया नहीं? बता। दानी तीखे तेवर लिए बोली। हाथ आगे करो अब, आहिल उसकी बात को अहमियत दिए बिना बोला। मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी। जिंदगी में एक बार तो प्रपोज करना है, रोज रोज तो नहीं करना होता ना कोई भी। इसमें भी तुम्हारी जान जा रही है। अब जल्दी से बैठो। आहिल हंसता हुआ दानी को देखने लगा। दानी तुम पागल हो, आहिल नफी में सर हिलाता हुआ हंस रहा था। जी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और मुझसे एंगेजमेंट करनी है तो पहले घुटनों पर बैठो और मुझे सही से प्रपोज करो, फिर पहनूंगी मैं। सही से मतलब अभी गलत तरीके से कर रहा था। बिल्कुल, अब जल्दी करो आहिल, दानी मुंह बनाती हुई बोली। दानी मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर आहिल हयात घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अब ज्यादा नखरे मत करो, इतने नखरे तो दुल्हन नहीं करती जितने तुम कर रहे हो। दानी खफगी से देखती हुई बोली। इश्क भी अजीब चीज है, वो सब करवा लेता है जिसकी तवक्को भी नहीं की जाती। इंसान झुकता है सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसके लिए दिल धड़कता हो, जिसके नाम पर धड़कनें रक्स करती हूँ। आहिल हयात भी झुका था अपने इश्क के सामने, अपनी हयात के सामने। आहिल निचला लब दबाए, घुट्टा नीचे किए, रेत पर रखे, चेहरा ऊपर उठाए अपने महबूब को देखने लगा। जो उसका इश्क, उसका जुनून। दानी इश्तियाक से आहिल को देख रही थी। आहिल जल्दी बोलो ना, दानी बेसब्री से बोली। आहिल के लिए बोलना मुहाल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दानी को प्रपोज करेगा। अब तुम कर रहे हो या मैं जाऊं? दानी उसे खामोश पाकर बोली। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। दानी, तुम मेरा इश्क हो, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना आहिल हयात अधूरा है। खुद को मेरी जिंदगी में शामिल करके इस अधूरे आहिल को मुकम्मल कर दो। आहिल अंगूठी सामने किए बोल रहा था। लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें उनका साथ दे रही थी। दानी खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी इस तरह मेहरबान होगी उसने कभी सोचा नहीं था। वो झुका था जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता।
वो उसके लिए झुक गया था। तुम्हें मुकम्मल करने से दानी भी मुकम्मल हो जाएगी, दानी ने कहते हुए आहल की हथेली पर रख दिया हाथ। आहल दानी की जानिब दिल फरेब मुस्कुराहट उछालता हुआ अंगूठी पहनाने लगा। खड़ा हुआ और दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। अब खूबसूरत हो गई है ये रिंग, आहल सताइश से बोला। दानी के सुर्ख सफेद रंग के हाथों में नीला हीरा जगमगाने लगा था। दानी के हाथ में आकर वो मजीद पुरकशिश और कीमती दिखाई दे रही थी। उसकी जीनत बढ़ गई थी। दानी नम आंखों से देखती उसकी जानिब आई। थैंक यू सो मच आहल। बोलते बोलते दानी की आंख से दो मोती टूटकर रुखसार पर आ गिरे। आहल अपनी उंगलियां दानी के रुखसार पर रखता आंसू पहुंचने लगा। दानी उसके लम्स पर आंखें बंद कर गई। आहल की खुशबू दानी के नथनों से अंदर जा रही थी। आहल ने दानी की कमर पर बायां हाथ रखकर उसे अपने साथ लगा लिया। दानी ने पेशानी आहल के सीने से लगा दी। दानी का बायां हाथ आहल के कुशादा सीने पर था। दानी की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। आहल की कुर्बत में वो खुद को फरामोश होता हुआ महसूस कर रही थी। दानी इर्द गिर्द से बेगाना उसकी खुशबू और कुर्बत को महसूस कर रही थी। आहल आंखें बंद किए, चेहरा ऊपर किए हुए था। वो दोनों इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ लहरों का शोर या उनके बीच की खामोशी। आसमान बादलों से पोशीदा होता जा रहा था। देखते ही देखते आसमान बरसना शुरू हो गया। आहल के चेहरे पर कतरे गिरे तो चेहरे पर खपकी दर आई। बारिश तेज हो रही थी। दानी उसके हिसार में सब कुछ भूल गई थी। याद था तो सिर्फ आहल। मुझे लगता है हमारी डेट खराब हो गई, आहल दानी से अलग होता हुआ बोला। मुझे नहीं लगता, दानी खुशगवारी से बोली। मतलब? आहल उलझकर उसे देखने लगा। हमारी डेट तो मजीद खूबसूरत हो गई है, दानी हाथ खोले आसमान को देखती हुई बोली। वापस चलें? आहल तेज होती बारिश के बायस बोला, जो दोनों को भिगा रही थी। क्यों? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुम जानते हो ना मुझे बारिश कितनी पसंद है, दानी उसके करीब आती हुई बोली। आहल के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। तो डिंपल भी याद आया। दानी दिलचस्पी से उसका डिंपल देखने लगी, लेकिन आहल की मुस्कुराहट सिमटने पर वो भी मंजर से गायब हो गया। दानी ग्रे आंखों में नाराजगी समोए आहल को देखने लगी। अपना फोन निकालो। खैरियत? हाँ, मैं सोच रही थी हमारे बच्चों को फोन कर दूं कि हम लेट हो जाएंगे तो हमारा इंतजार ना करें, दानी ने हाय संजीदी से बोली। आहल हंसता हुआ उसे देखने लगा। दो ना, दानी खपकी से बोली। अच्छा ये लो, आहल फोन निकालता हुआ बोला। वाटर प्रूफ है ना? दानी बरसती बूंद को देखती हुई बोली। जी मैडम, आहल बगौर उसे देखता हुआ बोला। दानी कहती अपना काम करने लगी। लेट्स हैव अ डांस, दानी अपना मतलूबा गाना ढूंढती हुई बोली। ये नहीं, आहल नाक चढ़ाता उसके हाथ से फोन लेकर देखने लगा। दानी उसकी पसंद देखने की मुंतजर थी। आहल को गाना नजर आ गया तो लब मुस्कुराने लगे। दानी इश्तियाक से देख रही थी। आहल ने फोन रखा और दानी को देखने लगा। बारिश तेज होती जा रही थी और दोनों को तेजी से भिगाती जा रही थी। दानी के सारे बाल गीले हो चुके थे। आहल उसके करीब हुआ और एक हाथ कमर पर रखकर खुद से उसको करीब कर लिया। दूसरे हाथ से दानी का हाथ थामा। दानी मसरूर सी ये सब एंजॉय कर रही थी। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है, एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया, कुछ खास है। कसूर ये सारा मौसम का है, बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है। चलने दो मन मर्जियां, होने दो गुस्ताखियां, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ नजदीकियां। कह दो तुम भी कहीं लापता तो नहीं, दिल तुम्हारा भी तो कुछ चाहता तो नहीं। बूंद बूंद में गुमसा है ये सावन भी तो तुम सा है। गाना इस हसीन मंजर की अक्कासी कर रहा था जिसका हिस्सा दानी और आहल थे। आहल ने एक हाथ कमर पर रखा और दानी को घुमाने लगा। समंदर की मौजें तेज हो रही थी। हवा के झोंके उनके चेहरे पर बोसे दे रहे थे और बारिश की बूंदें उन्हें सैराब कर रही थी। आहल ने झटके से उसे अपने करीब कर लिया। दानी के लिए इससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं हो सकता था। अपने चाहने वाले के संग एक खूबसूरत तरीन रात, पसंदीदा इंसान, पसंदीदा मंजर, पसंदीदा मौसम, हर चीज परफेक्ट थी। वो खुशनसीब थी क्योंकि परफेक्शन किसी किसी के नसीब में आती है। गीली रेत पर दोनों के पांवों के निशान सख्त होते और बारिश इन्हें फिर से मिटा देती। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दानी, मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। लेकिन आहल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। रात में यहाँ आए। दानी के चेहरे पर उदासी के साए थे। मुझे इससे बेहतरीन जगह नहीं मिली इसलिए, आहल शाने उचकाता हुआ बोला। हम यहाँ फिर आएंगे, दानी ज्यादातर नजरों से देखती हुई बोली। डन, आहल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अब चलें? आहल मुस्कुराता तो डिंपल नुमाया हुआ। दानी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। आहल फोन जेब में डालता दानी का हाथ पकड़े चलने लगा। दानी चेहरा मोड़कर उसकी हसीन रात को देखने लगी। दिल जाने से इनकारी था लेकिन आहल को इनकार नहीं करना चाहती थी वो। गाड़ी में आकर बैठे तो सर्दी का एहसास होने लगा। आहल ने हीटर ऑन कर दिया। दानी की आंखों में नींद के डेरे जमा लिए। आहल, तेज चलाना, वो जमाई रोकती हुई बोली। आहल इस्पात में सर हिलाता स्टार्ट करने लगा। कमरे में आते ही दानी वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके वो कंबल ओढ़कर आहल का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आहल मुस्कुराता हुआ कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, हमसायों का, दानी शरारत से बोली। फिर हमसायों से मिलकर ही सोना, आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी बंद होती आंखों से मुस्कुरा दी। गुड नाइट, आहल को देखकर आंखें मूंद ली। आहल खामोशी से उसे देखता मुस्कुराने लगा जो नींद की वादी में उतर चुकी थी। आहल का दिल भरा नहीं था। दिल से यही सदा निकल रही थी कि बिना पलक झपके
बस दानी को देखता रहे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए जिनमें अभी भी नमी थी, लाइट ऑफ की और दानी की जानिब रुख मोड़कर लेट गया। दानी को देखते ही देखते कब नींद उस पर मेहरबान हुई वो खुद भी जान न सका। आहिल कच्ची नींद से उठकर दानी को देखने लगा जो बेखबर सो रही थी। आहिल को शरारत सूझी तो मोहतात अंदाज में लिहाफ हटाकर नीचे उतारा और बिना चौके पैदा किए बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया तो हाथ में कॉफी का मग था। दानी उठो, आहिल उसके सर पर खड़ा होकर बोलने लगा। आहिल अभी सोने दो, दानी लिहाफ मुंह पर ओढ़ती हुई बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया। दानी उठ जाओ वरना मैं ये कॉफी तुम्हारे मुंह पर उंडेल दूंगा। दानी आंखें खोलकर पेशानी पर बल डाले आहिल को देखने लगी। ऐसे कौन उठाता है? मैं, आहिल की नाक दबाता हुआ बोला। सुबह सुबह क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। जिम जा रहे हैं हम, निकलो अभी जल्दी से। आहिल मग साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। दानी ना चाहते हुए भी उठ बैठी। मेरे वापस आने तक तुम तैयार मिलो, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। कौन कहेगा ये रात वाला जाहिल हयात है जो अब जल्लाद बना हुआ है। रात ऐसे मीठा बन रहा था मानो शहद भी कड़वा हो इसके सामने। दानी सर छिटकती वॉशरूम में घुस गई। कौन सी चुड़ैल को टाइम देकर आए थे जिम में? दानी कुटती हुई बोली। तुम्हें, आहिल शरारत से बोला। दानी आहिल के दाएं जानिब चल रही थी। शक्ल देखती है तुम्हें टाइम दूंगी। मैं चूजे कहीं के, दानी हकार भरती हुई बोली। अच्छा चूजी, आहिल डिंपल की नुमाइश करता हुआ बोला। अल्लाह करे ये रनिंग मशीन खराब हो जाए, फिर सारी जिंदगी भागते रहना। तुम, दानी अभी तक गुस्से में थी। तुम किस एंगल से मेरी बीवी लग रही हो? आहिल उसे घूरता हुआ बोला। ना फ्रंट साइड से, ना बैक साइड से, ना राइट साइड से और ना ही लेफ्ट साइड से। दानी तनक कर बोली। समझे? अच्छा अब अपना खून मत जलाओ और जाकर वर्जिश करो, आहिल स्पीड तेज करता हुआ बोला। मुर्ग हयात, दानी बुड़बुड़ाती हुई चल दी। आहिल नफी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। दानी आस पास देखती चलने लगी। नींद का खुमार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दानी जमाई रोकती हुई आहिल की नजर से बचकर एक कोने में आ गई। मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगी। मुझ पर हुक्म ऐसे चलाता है जैसे इलेक्शन में जीता हो मुझे। दानी सर छिटकती स्क्रीन को देखने लगी। आहिल घंटे बाद दानी की तलाश में यहाँ वहां घूमने लगा। बिलाखिर उसे दानी दिखाई दे गई। मैडम हम यहाँ किसी काम से आए हैं, आहिल उसके हाथ से मोबाइल झपटता हुआ बोला। भागना ही है ना, तुम वहां भाग रहे हो और मैं यहाँ मोबाइल पे, सिंपल, दानी छाने उचकाती हुई बोली। कल तुम्हारे सर पर डंडा रखूंगा, आहिल उसका हाथ पकड़े दरवाजे की जानिब चलने लगा। हाँ, और वही डंडा बार बार गलती से तुम्हें ही लगेगा। बोलते बोलते दानी की नजर उसकी बाजू से टकराई तो पलटना भूल गई। सुरमई आंखों में हैरत थी। आहिल ये क्या? दानी उसके बाएं सिप्स को उंगली से छूती हुई बोली। ओ मैं भूल गया। आहिल सर खुजाता हुआ बोला। क्या? दानी उलझ कर बोली। मुझे दूसरी शर्ट पहननी थी, जल्दी में ये पहन ली। आहिल उसका इस वक्त से आप बिना आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था। तुमने कहाँ कहाँ टैटू बनवा रखे हैं? दानी कदम रोकते हुए उसे देखने लगी। आहिल मुस्कुराया तो डिंपल भी अपनी दीद की खातिर ओद आया। तुम्हें दर्द नहीं होता? आहिल, दानी जितना हैरान होती उतना कम था। आहिल का दायां बाजू भी कोहनी से लेकर शाने तक टैटू से पोशीदा था और टैटू कुछ और नहीं बल्कि दानी के नाम का था। ये टैटू दूसरी बाजू वाले टैटू से ज्यादा बड़ा है। दर्द होता है या नहीं, तुम्हें क्या करना है? आहिल अबरूज काकर बोला। तुमने जो पागलों की तरह टैटू बनवा रखे हैं तो मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? आहिल हयात बहुत मजबूत है, ये मामूली सा दर्द कुछ भी नहीं। आहिल फिर घर चलो, कुछ बताती हूँ तुम्हें। दानी उसका टैटू देखती हुई चलने लगी। आहिल शाने उचकाता उसके पीछे पीछे चल दिया। आहिल मुझे भी टैटू बनवाना है। दानी उसका बायां बाजू पकड़े टैटू पर उंगलियां फेरती हुई बोली। सफेद बाजू की नीली रगें उभरी हुई थी जिन पर स्याह रंग की मानिंदानी लिखा था। तुम पागल हो क्या? आहिल को उसकी अकल पर शुबा हुआ। क्यों? दानी मासूमियत से बोली। बहुत दर्द होता है, कोई जरूरत नहीं है बनवाने की, आहिल हतमी अंदाज में बोला। तुम बनवा सकते हो, मैं नहीं, दानी खफगी से बोली। दानी मैं मर्द हूं और बहुत मजबूत हूं, जबकि तुम नाजुक हो, कैसे बर्दाश्त करोगी? आहिल फिक्रमंदी से बोला। एक बात बताओ सच सच, तुम्हें दर्द हुआ था? दानी उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। हाँ, आहिल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुमने भी बर्दाश्त किया ना, मैं भी कर लूंगी, लेकिन मुझे भी बनवाना है, प्लीज आहिल, दानी उसके हाथ थामती हुई बोली। अभी कुछ वक्त कबल तुमने मुझसे खरी खरी सुनी थी और खरी खरी सुना भी रही थी। आहिल ने उससे मौजू से हटाना चाहा। हाँ, और अब अच्छी अच्छी सुना रही हूँ, दानी नर्म मुस्कुराहट सजाए उसे देखती हुई बोली। आहिल का डिंपल फिर से नमाया हुआ। दानी चंद लम्हे बिना पलक झपके उसके डिंपल को देखती रही। बहुत बेशर्म है तुम्हारा ये डिंपल, इसे बोलो दुपट्टा लेकर निकला करे बाहर, दानी उसके मजबूत बाजू पर मुक्का जड़ती हुई बोली। अच्छा मैं कह दूंगा अब तुम नाश्ते की तैयारी करो, फिर हम बाहर चलेंगे, आहिल शुक्र अदा करता हुआ बोला कि वो भूल गई टैटू को। हाँ सब करेंगे, लेकिन पहले टैटू, दानी अपनी बात पर कायम रही। दानी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आहिल अब के गुस्से से चिल्लाया। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, दानी उसके गुस्से को किसी खातर में लाए बिना उसके मद्दे मुकाबल आई। डरती क्यों नहीं मुझसे? आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। क्यों डरूं तुमसे मैं? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। जानती हो ना मेरा कितना गुस्सा खतरनाक है, आहिल गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला।
دانی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے لیکن وہ پیچھے نہیں تھی۔ کچھ بھی کر لو، میں تو ٹیٹو بنواؤں گی، دانی اس کا چہرہ قریب کرتی ہوئی بولی۔ آہل نے آہستہ سے اس کی بازو آزاد کر دی۔ بہت ضدی ہو دانی، آہل افسردگی سے بولا۔ لیکن بالکل تمہاری طرح، دانی مسرور سی بولی۔ تم نے لڑکے سے بنوایا تھا یا لڑکی سے؟ دانی تجسس سے بولی۔ ایک مرتبہ لڑکے سے اور ایک مرتبہ لڑکی سے۔ آہل دکھی دکھائی دینے لگا۔ دونوں باہر لڑکے سے کیوں نے بنوائے ہیں؟ دانی اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ دانی بہت درد ہوگا، میری بات مان لو۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اب مجھے لے کر چلو۔ نہیں مانوں گی میں، آہل نے آخری بار پوچھا۔ نو، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر آؤ میں بناتا ہوں، آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ایک منٹ میں آتا ہوں، آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ آہل تم بناؤ گے؟ دانی اسے اندر آتا ہوا دیکھ کر بولی۔ ہاں میں بنا لوں گا، کسی اور کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دانی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم چینج کر لو، تب تک رفیق مشین لے آئے گا، آہل اسپاٹ انداز میں بولا۔ دانی پرجوش سی کپڑے نکالنے لگی۔ آہل ناشتہ بھی کر لیا، تمہاری ہاف گرل فرینڈ کہاں رہ گئی؟ دانی چکر لگاتی ہوئی بولی۔ میں نے فون کیا ہے، بس آتا ہوگا، آہل فون پر ٹائپنگ کرتا ہوا بولا۔ دانی کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ آہل خفا خفا دکھائی دے رہا تھا۔ دانی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ چند ساعتوں کے بعد رفیق آہل کو ایک باکس پکڑا کر چلا گیا۔ آؤ، آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی اشتیاق سے اس کے عقب میں چل دی۔ کہاں بنوانا ہے؟ آہل مشین نکالتا ہوا بولا۔ یہاں کندھے کے نیچے، دانی عقب میں شانے کے نیچے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ دانی کی شرٹ اس طرز کی تھی کہ اس کا گریبان بازو تک تھا اور یوں شانے پہ شرٹ نہیں تھی۔ دانی بیٹھ گئی تو آہل اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ کیسے ٹیٹو؟ تمہارا نام، بولتے ہوئے دانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانی میں صرف اے لکھوں گا۔ نہیں، پورا لکھو۔ دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے تمہاری بات مان لی ہے نا، اب تم بھی مان لو۔ اس کا چہرہ آگے کرتا ہوا آہل بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود دو دو جگہ بنوا لیا اور مجھے ایک بار بھی پورا نہیں؟ اب خاموش، پھرنا مت، آہل مشین آن کرتا ہوا بولا۔ جو ہی آہل نے مشین دانی کے کندھے کے نیچے رکھی، دانی کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دانی زور سے آنکھیں بند کر کے دانت دباتے ہوئے تھی، مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ دانی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ آہل نے مشین ہٹا دی۔ ہو گیا؟ دانی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں ہو گیا، آہل مشین واپس باکس میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیسا بنا ہے؟ دانی خوشی سے چہکی۔ اچھا بنا ہے، آہل کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ آہل تم ناراض ہو؟ دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل شکوہ کناہ نظروں سے دانی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو 2 منٹ کی بات تھی، دانی فاصلے سمیٹتی ہوئی بولی۔ لیکن جو تکلیف ہوئی وہ، دانی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ جتنا تم میرے لیے کرتے ہو نا، یہ سب 1% بھی نہیں اس کا، دانی نے بولتے ہوئے سر آہل کی پیشانی سے لگا دیا۔ کچھ بھی کرنے کو آہل بہت ہے۔ کیا تم میری خوشی میں خوش نہیں؟ دانی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ لیکن آئندہ ایسی کوئی خوشی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اوکے ڈن، اب پلیز اپنے گندے سے ڈمپل کا دیدار کروا دو، دانی چہرے سے بال ہٹاتی ہوئی۔ آہل تو مسکرانے لگا۔ یہ ہوئی نا میرے جاہل حیات والی بات، دانی اس کی گال کھینچتی ہوئی بولی۔ آہل خفگی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ میں بچہ نہیں ہوں، آہل برا مان گیا۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، تم تو ضعیف کبیر انسان ہو، میں چینج کر کے آتی ہوں، دانی کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ دانی ننگے پاؤں ریت پر کھڑی تھی، سمندر اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا اور بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آہل اس کے عقب میں کھڑا تھا، کیونکہ آہل کی تاکید کے باوجود وہ پھر سے آگے چلی جاتی۔ دانی زیادہ آگے مت جاؤ، یہ سمندر اپنے اندر لے جاتا ہے سب کچھ، آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا خفگی سے بولا۔ لیکن دانی کہاں سننے والی تھی۔ اچھا اب نہیں جاتی۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ لہریں آتی اور اسے آدھے سے زیادہ بھگا دیتی۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے پر آئے تھے جہاں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ خشکی کے اس چھوٹے سے قطعے کے سوا چاروں سمت صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا، حد نظر نیلا شفاف پانی۔ آخر تک پانی اور آسمان ایسے دکھائی دیتے جیسے دونوں کا ملاپ ہو رہا ہو۔ نیلا آسمان اور نیلگوں پانی دونوں آپس میں مل رہے تھے۔ دانی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پانی باہر نکلی اور آہل کی جانب چلنے لگی، جو پتھروں پر بیٹھا تھا۔ میں بالکل صحیح کہتی ہوں، تم بڈھے ہو گئے ہو، دانی تنک کر بولی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ آہل گوگل سر پر لگاتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں ڈر کر بیٹھے ہو، میرے ساتھ آؤ، دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، تاکہ دونوں ایک ساتھ ڈوبیں۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اچھا مت آؤ پانی میں، کچھ اور کرتے ہیں، دانی نیچے بیٹھتی ہوئی بولی۔ دونوں ہاتھ ریت میں ڈالے اور کچھ لکھنے لگی۔ آہل دلچسپی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی آہل، آہل زیر لب دہراتا ہوا مسکرانے لگا۔ دونوں کے وسط میں ہارٹ بنا ہوا تھا۔ دانی اب روج کا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ بہت زبردست، آہل ستائش سے بولا۔ دانی اس کے ہمراہ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا، دانی چہرہ اٹھا کر آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ کشتی آ گئی ہے، آؤ چلیں، آہل اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ دانی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی چلنے لگی۔ کشتی تیزی سے چل رہی تھی۔ دانی مسحور کن سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم گر گئے پھر، دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ برا کیوں سوچتی ہو، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم کہو۔ سوچ لو، دانی اوپر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں، آہل اپنی نازک سی دانی کی ناک رگڑتا ہوا بولا۔ پھر ٹھیک ہے، دانی مسرور سی بولی۔ بچپن میں سائیکل نہیں چلائی ہم نے، آہل اسے سائیکل پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کبھی نہیں چلائی، دانی اسے آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اپنی سائیکل پر سوار ہو گیا۔
नो चीटिंग जाहिल हयात, ओके? दानी उसे देखकर चिल्लाई। ओके, आहिल हाथ हिलाता हुआ बोला। 3 2 1 दानी बोल रही थी। जैसे ही 1 की आवाज हवा में गूंजी, दोनों ने पैडल मारा और साइकिल चलाने लगे। आहिल तेज तेज पाँव मारता दानी से आगे निकल गया। दानी हवनक ज़दा उसे देखने लगी, फिर उससे आगे निकलने की सही करने लगी। इसी असना में दानी का पाँव स्लिप हुआ और धड़ाम से आवाज आई। आहिल पाँव जमीन पर रखे चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगा, जो जमीन बोस हो चुकी थी। आहिल बमुश्किल हंसी दबाता हुआ चलता दानी के पास आया।